Warm welcome to each and every students to my online class. I hope you all are doing well and safe. Please stay at home and try to connect with us through social media. Dear students, myself Bishwit Vishwas, Assistant Professor, Pragati College of Education, Dagapur, Shiliguri, District Darjeeling, West Bengal. As you know already, we have learned about the different common teaching skills like skills of introducing lesson, skills of questioning, skills of using teaching aids, and so many common teaching skills. So dear students, today we will go to learn about rest two important teaching skills like skills of questioning and skills of reinforcement. Teaching skills are specific instructional activities and procedures that a teacher may use in his classroom. These are related to the various stage of teaching or in the continuous flow of the teacher performance. Teaching learning is a continuous process that promotes teachers teaching skills, master new knowledge, develop new proficiency to improve students' learning. A teacher who is skilled at communication, classroom management and appropriate discipline techniques create a positive learning environment. A teacher who comes to classroom with good communication skill help students feel at easy in their environment. If he is to both verbal and non-verbal communication help students understand what is expected of them and help build their confidence in learning. Body language, positive and word reinforcement and appropriate and effective language for discipline creates a classroom that inspires students to try without fear that they will judge unfairly. So dear students, let's go, we will learn about skill of illustration with examples and skill of reinforcement. Developing teaching skills, illustration with examples and reinforcement. After completing these two skills, we will prepare the engagement with field on micro lesson. So first, skill of explaining. Skill of explaining. It has been observed that some abstract ideas or concepts are very difficult to teach and learn. In spite of their best efforts of explaining the concepts, the teacher are unable to convey the true sense and meaning of the concepts and learners are not able to understand properly. This difficulty of the teacher can be solved easily if he has the total knowledge about illustration with examples. So this skill is very important for the teacher because if he can properly present his topics and properly illustrate each and every examples, then students will be able to understand properly, otherwise they can't. So here is basically two components, number one simple and number two relevant and interesting to the point being explained. So simple is that simple your
teaching procedure, your methodology, your strategy, your language, all things should be the simple. जैसे कि आप क्लास ले रहा है, आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में यूज़ कीजिए. आप जब एग्जाम्पल दे रहा है एकदम सिंपल एग्जाम्पल दीजिए. बट रिमाइंड इट, जब आप एग्जाम्पल देंगे, जब आप सिंपल एग्जाम्पल देंगे तो उसी एग्जाम्पल को आपको प्रॉपरली इलस्ट्रेट करना पड़ेगा. सेकंड, रिलेवेंट, इंटरेस्टिंग टू द पॉइंट बीइंग एक्सप्लेन्ड. यस, आप जब डिस्कस करेंगे, आप जब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, सब कुछ आपका रिलेवेंट टू द कंटेंट होना चाहिए. एंड इट शुड बी इंटरेस्टिंग, एंड इट शुड बी इंटरेस्टिंग बिकॉज कभी कभी आपको स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग डीमोटिवेटेड ऑटोमेटिकली हो जाता है. सो आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा आपका टॉपिक को, अदरवाइज वो लोग अटेंशन ठीक से नहीं दे पाएगा. सो जब आप एक टॉपिक को एकदम इंटरेस्टिंगली आप प्रेजेंट करेंगे, एकदम सिस्टमेटिकली आप प्रेजेंट करेंगे, दैट टाइम योर क्लास शुड बी 100% सक्सेसफुल. सो अब जो एग्जाम्पल दे रहा है, जो इलस्ट्रेट कर रहा है, ऑल आर रेलिवेंट टू द टॉपिक. Now let's move on to simulated lesson. सेम लास्ट क्लास में हम और 3 स्किल के बारे में डिस्कस किया, ऑलरेडी डेवलप भी किया. स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स. So now we are discussing about the skill of illustration with examples format. So same आप जानते हैं, यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा. और मैं प्रीवियस फॉर्मेट जैसे यहाँ पे यूनिट, सब यूनिट, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर सब कुछ सेम रखे हैं. और यहाँ पे देखिए कंपोनेंट चेंज हुआ है. 2 ही कंपोनेंट है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल में. एक है सिंपल, दूसरा है रेलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग टू द पॉइंट बीइंग एक्सप्लेन्ड. तो यहाँ पे देखिए हम कंपोनेंट जो है टीचर्स एक्टिविटी. The illustration given by the teacher must be simple and to the point. Examples must be related to the topic with proper illustration. Actually, this is the common sentence. After that, you can give 1 or 2 examples and with illustration. तो आप जो एग्जाम्पल दिया है क्लासरूम में वो सिंपल है, उसका जो इलस्ट्रेशन आप किए हैं वो सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाने के लिए. आफ्टर दैट आपको 1-2 एग्जाम्पल देना पड़ेगा और इलस्ट्रेशन टीचर्स एक्टिविटी में देना पड़ेगा. एंड व्हेन यू प्रेजेंट, व्हेन यू डिस्कस एनी टॉपिक, एनीथिंग, दैट टाइम द लर्नर्स विल बी एक्टिव लिसनर. दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. And second component is relevant and interesting to the point being explained. The presentation examples will be relevant and interesting. जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये कॉमन सेंटेंस you have to write here, and after that give some examples, give some illustration. Same आपको यहाँ पे देना पड़ेगा. तो दैट टाइम ऑल्सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू
students will be try to understand. So this is the format simulated lessons on illustration with examples. Next, ऑब्जर्वेशन शीट. सेम ये आपको ब्लैंक रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रीवियस जो ऑब्जर्वेशन शीट्स है सेम उसी हिसाब से मैंने किया. तो कंपोनेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, पोर, वेरी पोर, सिंपल, ये कंपोनेंट दो कंपोनेंट मैंने यहाँ पे दिया. तो आपका जो जिस ग्रेड में पड़ेगा उस ग्रेड में टिक देना पड़ेगा, बट आपको ये ब्लैंक रखना पड़ेगा. So this is the skill of illustration with examples. अगेन हम समराइज कर रहे हैं. इसका बेसिकली दो ही कंपोनेंट है, एक है सिंपल एंड दूसरा है इंटरेस्टिंग, रेलिवेंट टू द पॉइंट बीइंग एक्सप्लेन्ड. तो सिंपल मीन्स आपको सिंपली क्लासरूम में डिस्कस करना है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है, सिंपल क्वेश्चन पूछना है, सिंपल एग्जाम्पल भी देना है और उसका प्रॉपर इलस्ट्रेट भी करना है. Interesting, relevant to the point being explained. So interesting means different, you should give different types of live examples, simple examples, and it should be relevant to the topic. आप लर्निंग का, आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जॉयफुल कर सकता है, इंटरेस्टिंग भी कर सकता है. सो ये टोटली डिपेंड अपॉन यू. सो दिस वाज द स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल. Now let's move on to the next skill, reinforcement. Skill of reinforcement. Reinforcement actually this is the very important part of teaching learning process. So आप घर में देखिए, आप कहीं पे भी देखिए, स्पेशली घर में देखिए, आपका जो घर में बहुत सारे बच्चे हैं, उस बच्चे को देखिए, जब आप कुछ रीएनकरेज कर रहे हैं बच्चे को, ऑटोमेटिकली वो लोग नेक्स्ट बहुत इनकरेज भी हो जाता है और काम भी ठीक से करता है. सो आप क्लासरूम में एक बच्चे को इनकरेज किया, दूसरे बच्चे को इनकरेज नहीं किया, दैट मीन्स वो इमोशनली बहुत पीछे हो जाता है. सो इनकरेज इज़ बहुत इम्पोर्टेंट. अगर आप टीचर्स इनकरेज कर रहा है स्टूडेंट्स को, दैट मीन्स स्टूडेंट्स का बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगा, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बहुत आगे जाएगा. सो ऑलवेज ट्राई टू गिव reinforce to your learners. तो reinforcement is used to promote learning and to draw the attention and encouragement of the students. It also provides a greater motivation to the students. The students' behavior should be approved by the teacher, and then they would feel motivated to participate with great enthusiasm. Some components are there. How to reinforce your learners? Just you have to maintain these guidelines. First component is use of positive verbal reinforcement. Second component is use of positive non-verbal components. Third, use of negative verbal reinforcement. Fourth, use of negative non-verbal reinforcement. Fifth, extra verbal reinforcement. Use of inappropriate or wrong reinforcement. So ये है 6 components, that means six traffic. How to reinforce, when reinforce. So which types of reinforcement you will give. So एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल reinforcement. एक्चुअली पॉजिटिव वर्बल इज सिंपल. एग्जाम्पल, अब जब क्वेश्चन पूछ रहे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स पॉजिटिव आंसर दे रहा है, दैट मीन्स राइट आंसर दे रहा है, दैट टाइम आप क्या बोलते हैं? गुड, वेरी गुड, गुड. ये जो आप बोले हैं गुड, दिस इज पॉजिटिव वर्बल. दैट मीन्स आपका
रिस्पॉन्स पॉजिटिव था एंड इट ऑल्सो बी वर्बली गुड. सेकेंड, यूज ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल reinforcement. use of positive non-verbal reinforcement. Non-verbal reinforcement is, तो अब कभी कभी ऐसे भी करते हैं क्लासरूम में, जैसे कि स्टूडेंट्स सही जवाब दिया है, आपका जो हेड है वो नोडिंग योर हेड, यू गिव रिस्पॉन्स थ्रू नोडिंग योर हेड, पॉजिटिव रिस्पॉन्स. दिस इज नॉन वर्बल reinforcement. कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन में भी आप बताते हैं येस यू आर राइट, योर आंसर वाज इज राइट. नेक्स्ट, यूज ऑफ नेगेटिव वर्बल reinforcement. एक्चुअली नेगेटिव वर्बल मीन्स नो. स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछे, स्टूडेंट जवाब दिया, दैट मीन्स स्टूडेंट्स नेगेटिव जवाब दिया. दैट टाइम you will give him to negative reinforce. Suppose no. बट अब याद रखिए यहाँ पे, ताकि स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्टली नो का बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो दे विल बी डीमोटिवेटेड. सो उनको इनकरेज करना है. यस, आप बोलिए यस प्लीज़ ट्राई, प्लीज़ ट्राई. दिस इज़ नेगेटिव वर्बल reinforcement. अगर आप बोल रहे हैं प्लीज़ ट्राई, विल डू, प्लीज़ ट्राई, यू कैन डू, दैट मीन्स ही और शी विल बी encouraged. अगर आप डायरेक्टली नो बोल रहे हैं, दैट मीन्स उनका भी वो डिमोटिवेटेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली. सो ऑलवेज ट्राई टू गिव reinforcement through positive way. So next component is use of negative non-verbal reinforcement. Yes, non-verbal means you can give response to your facial expressions, nodding your head. कभी कभी होता है, अब जो क्वेश्चन पूछे है स्टूडेंट जवाब दे रहा है, लेकिन वो जवाब नेगेटिव है, दैट मीन्स आपका हेड को नोडिंग करके आप दिखा रहा है नो, योर आंसर इज नॉट राइट. सो दिस इज नॉन वर्बल reinforcement. एंड नाउ एक्स्ट्रा वर्बल reinforcement. एक्स्ट्रा वर्बल reinforcement इज, अब देखिए जो आप क्लास 8 लेवल का बच्चे को आप क्लास ले रहा है, सपोज 6 लेवल का बच्चे को क्लास ले रहा है, तो आप एक क्वेश्चन, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उनको पूछा है सब स्टूडेंट्स को, दैट मीन्स आप जानते हैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा. सो दैट टाइम वो स्टूडेंट्स पॉजिटिव फीडबैक दे दिया, दैट मीन्स राइट आंसर दे दिया, जवाब दे दिया, आपका एक्सपेक्टेशन नहीं था, दैट मीन्स आप इतना जॉयफुल हो गए, आप इतना इम्प्रेस्ड हो गए, उसी समय आप ऑटोमेटिकली उनको बोल रहा है यस एक्सीलेंट, वेल डन, वेरी गुड. ये देखिए एक साथ में आप कितना वर्ड उनको अप्रिशिएट किया है, यस एक्सीलेंट, वेल डन, वेरी गुड. दैट मीन्स आप बहुत प्लीज्ड हो गए उनके जवाब पे. सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वर्बल reinforcement. And last one is use of inappropriate or wrong reinforcement. Use of inappropriate and wrong reinforcement. एक्चुअली ये कभी कभी हो जाता है, जैसे कि ड्यूरिंग क्लास आपको प्रेजेंट करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको समराइज करना है, आपको इवेलुएट करना है, बहुत प्रेशर एक टीचर्स के ऊपर रहता है. तो स्टेप बाय स्टेप ये टोटली एक्टिविटी टीचर्स को करना पड़ेगा. दैट टाइम suppose teachers ask one questions to one students, what is this, what is that? Students response, yes sir, this is that, this is this. But that time टीचर ने क्या किया, उनको reinforce नहीं किया, गुड, वेरी गुड नहीं बोला. ऑटोमेटिकली टीचर सेकेंड पॉइंट में डिस्कशन शुरू कर दिया. लेकिन डिस्कशन शुरू करने के बाद 2-3 मिनट बाद टीचर्स को याद आ गया, अरे मैं तो उसको reinforce नहीं किया, उसको मैंने थैंक यू नहीं बोला, वेल डन नहीं बोला. सो दैट टाइम आफ्टर 2 or 3 minutes टीचर विल गिव reinforce that student, yes your answer was right and thank you so much. बट देखिए डिफरेंट यहाँ पे ये है
आप थैंक यू उनको 2 मिनट बाद बोले हैं और थैंक यू उनको बोलना चाहिए 2 मिनट पहले। सो ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। आप 2 मिनट पहले अगर उनको जब रीइंफोर्स दे देते, थैंक यू बोल देते, दैट मीन्स उस समय वो बच्चे बहुत ही इनकरेज हो जाता। लेकिन अब 2 मिनट बाद दिया है मतलब वो ऑटोमेटिकली 2 मिनट वो इमोशनली डिप्रेस्ड हो गया है, सर मैं इतना अच्छा जवाब दिया, सर मेरे को ये रीइंफोर्स नहीं किया, थैंक यू नहीं बोला। दैट मीन्स यू शुड गिव रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट टू द टाइम, जब आपका ज़रूरत है उसी समय आपको देना चाहिए। सो ये था टोटली कंपोनेंट्स, यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, यूज ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, use of negative verbal reinforcement, use of negative non-verbal reinforcement, extra verbal reinforcement, and use of inappropriate or wrong reinforcement. So again I am summarize. So reinforcement, it's used to promote learning and draw the attention and encouragement of the students. हर टाइम स्टूडेंट्स को encourage करता है reinforcement. सो आप अगर प्रॉपरली रीइंफोर्स कर सकते तो आप कैसे, कब, किस टाइप का रीइंफोर्स करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट, पॉजिटिव वर्बल दैट मीन्स गुड, वेरी गुड, आप अपना मुख से बोल रहे हैं। सो पॉजिटिव नॉन वर्बल दैट मीन्स you will give response through nodding your hand, positive response, and also facial expression. So third, use of negative verbal reinforcement, no, मैंने बोला आप नो मत बोलिए, नो नहीं, प्लीज ट्राई, यू कैन डू। फोर्थ, नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, दैट मीन्स ये भी सेम नॉन वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जैसे। सो योर रिस्पॉन्स विल बी थ्रू facial expression, nodding your hand, that is. Next, extra verbal reinforcement. Sometimes teacher unexpectedly placed, and he will give response, yes, excellent, very good, well done. So many. And last one is use of inappropriate or wrong reinforcement. ये एक्चुअली टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका ज़रूरत है, जब आपको रीइंफोर्स करना है, दैट टाइम यू शुड गिव रिस्पॉन्स रीइंफोर्स, दैट टाइम यू शुड से थैंक यू, दैट टाइम यू शुड से वेरी गुड. So it will be benefited for the learners. So this was the skill of reinforcement. Next, इनका जो फॉर्मेट है, हम फॉर्मेट देखेंगे, हाउ टू डेवलप. सो सेम आपका प्रीवियस फॉर्मेट जैसे ही है, जस्ट यहाँ पे कंपोनेंट लिखा है 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट अगेंस्ट पे आपको यहाँ पे दिया गया है. सो आप टीचर्स एक्टिविटी थोड़ा देखिए. टीचर्स एक्टिविटी में ड्यूरिंग द लेसन ऑलवेज टीचर विल ट्राई टू गिव पॉजिटिव reinforcement. Just you have to show how to give positive reinforcement. So यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया, क्वेश्चन 1. सो यहाँ पे ब्लैंक है. सो यू हैव टू राइट 1 क्वेश्चन हियर एंड नेक्स्ट देखिए नीचे लिखा है गुड एंड राइट साइड में स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखा है राइट आंसर. सो अब जो यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहा है, इसी क्वेश्चंस का आंसर स्टूडेंट राइट देगा, तो उसका आंसर भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट यहाँ पे गुड, थैंक यू, ये सब आपको लिखना पड़ेगा. सो नेक्स्ट, यूज ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल. यहाँ पर भी सेम मैंने दिया. समटाइम्स ड्यूरिंग द लेसन्स टीचर विल गिव पॉजिटिव reinforcement थ्रू नोडिंग हिज हेड. सो ये जो सेंटेंस है, ये कॉमन सेंटेंस है, ये आपको लिखना पड़ेगा. उसके बाद देखिए क्वेश्चन 1 अगेन डैश डैश डैश, आंसर इज रॉन्ग, सॉरी आंसर इज राइट. सो यहाँ पे क्वेश्चन सेम देना पड़ेगा, आंसर इज राइट
एंड देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नोडिंग हिज हेड. टीचर्स गिव रेस्पॉन्स थ्रू नोडिंग हिज हेड एंड ऑल्सो थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन. सो इसी हिसाब से आपको ये टोटली यूज ऑफ नॉन नेगेटिव वर्बल reinforcement, use of negative non-verbal reinforcement, use of extra verbal reinforcement, use of inappropriate and wrong reinforcement. ये सब में आपको एक एक करके क्वेश्चन देना पड़ेगा और इसको दिखाना पड़ेगा. एक्सीलेंट, वेरी गुड. एंड नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन शीट. इट ऑल्सो सेम. सो ये भी आप ब्लैंक छोड़ दीजिए. ओके यहाँ पे रिमार्क्स जो है, रिमार्क्स भी ब्लैंक, सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर ब्लैंक, टोटल ऑब्जर्वेशन शीट विल बी ब्लैंक क्योंकि ये ऑब्जर्वर का पेज है. तो आप और ऐसे ही आप लेसन के पीछे एक ऑब्जर्वेशन शीट लगा के आप छोड़ दीजिए. सो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर अंडरस्टूड properly. So next class will discuss according to your syllabus, engagement with field, micro teaching, practical through simulation mode, 5 lesson. So हम ये engagement with field next class में हम prepare करेंगे. Thank you.